Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from the Millennium Science 7 Fiber to Fabric, and the chapter is third. Clothing is necessary for man for protective as well as aesthetic reason. Clothes protect us from extremes of different weathers. They also enhance our personalities. The clothes we wear are of different varieties, not only in the terms of color and style, but also the fabric from which they are made. तो क्लोथ्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, एज वेल एज हमारे ट्रेडिशनल रीजंस की वजह से भी। क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम वेदर से, हमारी पर्सनालिटी को और ज्यादा एनहेंस करते हैं, और हम क्लोथ्स पहनते हैं अलग अलग वैरायटी का, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कलर, स्टाइल, फैब्रिक, बल्कि उसके वो कैसे बना है। फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, प्लांट सेलुलोज, कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क, animal protein, wool and silk. Natural and synthetic fiber. Man has developed means of obtaining fiber from various animals and plants to make fabric for clothes. The fiber obtained from plants and animals, for example, from natural sources, is known as natural fiber. The fiber which are obtained from plant or animals, उनको कहते हैं हम natural fiber. Fiber manufactured through different man-made process is called synthetic fiber. फाइबर जो मैन्युफैक्चर होता है डिफरेंट मैन मेड प्रोसेस से, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. The characteristics of each fiber obtained from different plants and animals are different from each other. जो भी characteristics होते हैं फाइबर के, जो obtain होते हैं अलग अलग प्लांट और एनिमल्स के, उनके characteristics भी different होते हैं एक दूसरे से. You have already studied in class 6 that cotton and jute are two major fiber that are obtained from plants. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि कॉटन और जूट दो मेजर फाइबर हैं जो किससे ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से. Wool and silk are two fabrics whose fiber are obtained from animals. और wool और silk दो fabrics हैं जो हम obtain करते हैं animals से. Animal fiber are made of protein, whereas plant fibers mainly consist of cellulose. Animals जो fiber होते हैं वो बने होते हैं protein से, और जो plants के fibers होते हैं वो बने होते हैं cellulose से. Activity 1 will make you realize that different fibers have different physical properties. For example, silk shines more than cotton, wool fabric feel warmer than silk and cotton, synthetic clothes have more strength than natural fiber, etc. तो हम इस एक्टिविटी से जानेंगे कि कैसे डिफरेंट फाइबर्स के पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. सिल्क शाइन करता है ज्यादा कॉटन से, वूल फैब्रिक ज्यादा वार्म होता है सिल्क और कॉटन के फैब्रिक से, और सिंथेटिक क्लॉथ्स ज्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं नेचुरल फाइबर से. Fabrics are prepared from yarns. So we can say that yarns decide the quality of fabric. जो फैब्रिक है वो धागों से मिलकर बनते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो धागे हैं वही बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ फैब्रिक कैसा है. दिस इज द yarn, धागा, एंड दिस इज द फैब्रिक. जितना ज्यादा लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग yarn होगा उतना अच्छा फैब्रिक होगा. Characteristics of a yarn vary on the basis of raw material, fiber length and alignment, quantity of fiber used and the degree of twist. तो जो characteristics है yarn का वो varies करता है basis raw material पे, कि raw material कैसा है, fiber की length और उसका alignment कैसा है, उसकी quantity fiber जो use कर रहे हैं वो कितना है, और जो thread बना है उसको कितने डिग्री पर कितना twist किया है. Yarn can be made from a number of raw material, including natural and synthetic fiber. Yarn को बहुत सारे raw material से बनाते हैं, जिसमें natural और synthetic fiber दोनों होते हैं. Now let us study in details the processes involved in making fabric from natural animal fiber, wool and silk.
तो अब हम डिटेल प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे नेचुरल फाइबर एनिमल्स के फाइबर जो वूल और सिल्क है उससे कैसे बनता है. Definition. Yarn. Yarn is a long continuous length of fiber twisted together by the process of spinning. तो spinning के process से yarn बनाया जाता है. Wool. Wool is a durable and elastic fiber. It is commonly used for making woolen clothes like sweaters, shawls, quilts, and blankets that shields us from cold. Wool has air spaces between its fiber which trap air. Because of this property, wool acts as an insulating shield and helps maintain body temperature in cold weather. तो wool क्या है? Wool durable है और elastic fabric है. कॉमनली ये यूज होता है वुलन क्लोथ्स के लिए जैसे स्वेटर, शॉल, क्विल्स और ब्लैंकेट्स के लिए. और ये एक शील्ड का काम करता है कोल्ड सीजन में या कोल्ड एरियाज में. वूल हैज एयर. वूल के पास एयर होती है उनके अंदर बिटवीन उसके फैब्रिक्स के अंदर जो क्या करती है एयर को ट्रैप कर लेती है और हमारी बॉडी में इंसुलेटेड शील्ड बना देती है. इंसुलेटेड शील्ड मींस आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर ही रहता है, उसको एस्केप आउट करने नहीं देती और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है कोल्ड वेदर में. Wool contain high amount of nitrogen and does not burn due to its property. It is also used for insulation. तो वूल बहुत ज्यादा हाई अमाउंट कंटेन करता है नाइट्रोजन का, इसलिए वो बहुत जल्दी बर्न नहीं होता. Why? Because nitrogen is not the gas which easy to burn. Due to this property, it is also used for insulation. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो इंसुलेशन के लिए यूज होती है. Wool fiber is derived from the fur fleece of domesticated sheep and goat. It is also derived in lesser quantities from alpacas, llamas, camels and angoras rabbit. तो वूल फाइबर हमारा हमें मिलता है डोमेस्टिक शीप्स और गोट से, उसके फर या फ्लीस से, और ये और भी लेसर क्वांटिटी में मिलता है अल्पाका से, लामा से, कैमल से और अंगोरा रैबिट से. The quality of wool is determined by the following factor. जो quality of wool है वो इस following factors को बताती है. Scale structure. Good wool fiber have scales which overlap like shingles on a roof. Wool structure के पास क्या होंगे? Scale, जो क्या होंगे? एक दूसरे के overlap होंगे. Crims. The crimp or bends in the wool fiber make it heavier than other textiles and help it to retain heat. जितने ज्यादा क्रिम्स होंगे उतनी ज्यादा वूल गर्म होगी. फाइनर क्वालिटीज ऑफ वूल हैव मोर क्रिम. जितनी ज्यादा वूल फाइन होगी उतने ही ज्यादा उसमें बेंड्स या क्रिम्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, फाइन वूल लाइक मेरिनो may have up to 40 crims per centimeter. Coarser wool like Kakakool have only 1 or 2 crim per inch. तो मेरिनो वूल के पास 40 क्रिम्स पर सेंटीमीटर में होते हैं, जबकि कॉर्सर वूल में जो काराकुल वूल है उसके अंदर 1 to 2 क्रिम्स होते हैं पर इंच पर. Now the diameter. The diameter of wool fiber varies from 15 micrometers superfine merino to 30 or more micrometer for coarser wool. तो 15 माइक्रोमीटर से लेकर 30 more micrometer तक इसकी वूल की diameter होती है. Length. Longer fiber make finer wool. Length varies from 15 centimeter to 4 centimeter. तो इनकी length जो फाइबर की होती है वो फाइनर वूल बनाती है. लेंथ वेरी करती है 15 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक. कलर. Wool is generally creamy white in color. Only some breed of sheep produce black, brown or gray wool. Wool generally creamy white color की होती है और कुछ ही sheep की breeds हैं जो produce करती है black, brown और gray wool. Cleanness and freedom from damage. साफ सफाई और फ्रीडम डैमेज होने से. These factors are determined by the skills of the workers who shear wool from sheep and process it thereafter. ये जो फैक्टर है वो डिटरमाइन करता है उस वर्कर पर जो वूल
हटाता है इनके ऊपर से, शेयर करता है वूल को। The quality of wool also depend on the animals from which it is obtained. Some fine qualities wools are obtained from. कुछ क्वालिटी जो वूल की होती है डिपेंड करती है उन जानवरों से जिनसे वो ली गई है, और कुछ क्वालिटीज वूल ऑब्टेन होती है। The finest wool, merino wool, is obtained from a breed of sheep called merino. It is used to make the best quality woolen clothes. जो finest wool है वो है merino wool, और ये obtained होती है breed sheep से, जिसको कहते हैं merino. Goats. Wool obtained from Angora goat is called mohair. The fleece is white, smooth, and lustrous, and has high tensile strength. Angora goat is found in hilly area of Jammu and Kashmir. Wool from Kashmir goat, which is found in the mountain of China and Tibet, is also highly valued. तो जो वूल ऑब्टेन्ड होती है अंगोरा गोट से उसको कहते हैं मोहेर, और जो फ्लीज होता है इसका वाइट होता है, स्मूथ होता है, लस्ट्रस होता है, और हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इसकी। और जो अंगोरा गोट है वो जम्मू कश्मीर के रीजन में मिलती है। वूल फ्रॉम कश्मीर गोट कहाँ पे मिलता है? ये माउंटेन्स चाइना के और तिब्बत के। Kashmir, Pashmina, and other goats have soft and fine under hair. Their fleece is made into expensive fiber. Kashmir wool commands some of the highest prices in the world. Pashmina shawls are quite rare and expensive too. तो कश्मीर, पश्मीना और अदर गोट्स के जो वूल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। जो कश्मीरा वूल है उसका हाईएस्ट प्राइस है वर्ल्ड में। उसके बाद जो पश्मीना शॉल्स हैं वो रेयर हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। Rabbits. Angora rabbits has very fine soft hairs, which provides Angora wool. Angora fiber has a smooth silky texture and is fluffy and warm. Angora rabbits के fine soft hair होते हैं जो provide होते हैं Angora wool से। अंगोरा फाइबर बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, सिल्की टेक्सचर होता है उसका, फ्लफी होता है और ये वार्म भी होता है। कैमल फैमिली. Alpaca, llama, and camel have hairs which make soft, warm, and light-weighted fiber. जो अल्पाका है, लामा है और कैमल है, उनके हेयर्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, वार्म होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं। अल्पाका एंड लामा आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। जो अल्पाका है और लामा है वो साउथ अमेरिका में मिलता है। Yaks. Yak hair is also used to make wool. Yak are mainly found in Tibet and Ladakh. Yak के hairs भी wool बनाने के काम आते हैं और ये जनरली तिब्बत और लद्दाख में मिलते हैं। Sheep breeding. Rearing and breeding of sheep is a common occupation across the world. The sheep's farmer prefers sheep varieties with the following qualities. जो शीप को रेयर करना और उसको ब्रीड करना एक कॉमन ऑक्यूपेशन है पूरे वर्ल्ड में, और जो शीप हैं फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं वो वैरायटी ऑफ शीप्स रखते हैं फॉलोइंग क्वालिटी के साथ। वैरायटी विच गिव्स गुड वूल और मीट, यूज फीमेल शीप विच गिव बर्थ टू मल्टीपल लैम्स एट वन टाइम, शीप विद रेजिस्टेंस टू डिजीज। वैरायटी ऑफ गुड, जिससे वैरायटी ऑफ गुड वूल और मीट मिल पाए। यूज फीमेल शीप्स को रखना पसंद करते हैं क्योंकि वो मल्टीपल लैम्स को बर्थ देते हैं एक बारी में। शीप जिसके पास रेजिस्टेंस पावर होती है डिजीजेस से लड़ने की। द फ्लीस ऑफ शीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर, coarse beard hair and fine soft under hair. जो शीप का फ्लीज होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है कॉर्स बियर्ड हेयर और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। वूल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडर हेयर। जो वूल फाइबर है वो हमें अंडर हेयर से मिलता है। साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस्ड सम हाइब्रिड मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स विद इंड्यूस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स varieties of sheep that only have soft under hair. साइंटिस्ट ने ब्रीड्स बनाए हैं, हाइब्रिड ब्रीड्स बनाए हैं जिसमें उन्होंने मिक्सिंग करी है और उस मिक्सिंग में उन्होंने
सॉफ्ट अंडर हेयर वाले ब्रीड्स बनाए हैं. Such sheep not only give better quality wool but also more fleece. ये sheep ना ही better quality wool देती है बल्कि बहुत ज्यादा fleece या fur भी देती है. The process of selecting parents from obtaining special characters in their offsprings, such as soft underhair in sheep, is termed as selective breeding. जो प्रोसेस होता है पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का इस स्पेशल ब्रीड को बनाने के लिए ताकि वो सॉफ्ट अंडर हेयर ब्रीड्स को या ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे पाए, उनको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप्स. कुछ इंडियन ब्रीड शीप्स के. लोही गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है और ये राजस्थान और पंजाब में मिलते हैं. रामपुर बुशैर ब्राउन फ्लीज होता है इनका, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं. नाली कारपेट वूल्स बनाए जाते हैं इनके फर से, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं. बाकरवाल फॉर वुलन शॉल्स, वुलन शॉल्स के लिए मशहूर है इनकी वूल, जम्मू कश्मीर में ये मिलते हैं. मारवाड़ी कोर्स वूल के लिए फेमस है और ये गुजरात में मिलते हैं. पटनवड़ी फॉर हॉजरीज, हॉजरीज के कपड़ों के लिए मशहूर है ये और ये गुजरात में मिलती है. Sheep farming. Raising sheep and lambs for wool, milk or meat is called sheep farming. Sheeps को रखना, उनके lambs को रखना, किसके लिए? वूल के लिए, मिल्क के लिए और मीट के लिए, इसको कहते हैं sheep farming. Sheep have multiple utility. They provide wool, milk, meat, skin and manure. तो इनसे हमें क्या क्या मिलता है? वूल, मिल्क, मीट, स्किन मिलती है और मैन्योर भी. This has made sheep farming an economical beneficial agrarian activity in rural India. रूरल इंडिया में ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिशियल एक्टिविटी है. It is particularly common in arid, semi-arid and mountainous region where cultivation of crop is difficult. Rearing sheep also requires less labor and money than raising other kinds of livestock. तो जो ये particularly उन regions में होती है जहां पर खेती बाड़ी बहुत मुश्किल से होती है और रेयरिंग और शीप्स बहुत ज्यादा लेस लेबर की है और इसमें पैसा भी कम लगता है अदर लाइफ स्टॉक्स को मेंटेन करने की जगह. शेल्टर. शीप्स डू नॉट नीड elaborate housing facility. Sheds with gunny bags and thatched roof provide enough protection from unfavorable weather conditions like sun, rain, wind and natural enemies. They have a lifespan of 10 to 12 years. तो शीप्स को ज्यादा हाउसिंग फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती, जस्ट गनी बैग्स और थैच रूफ ही उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत होता है, जो उनको बचाता है सन से, रेन से, विंड से, स्टॉर्म से और नेचुरल क्लैमिटी से, नेचुरल एनिमीज से. और इनकी शीप्स की जो लाइफ स्पैन होती है, जिंदगी 10 से 12 साल की होती है. फूड, वाटर एंड एयर. Sheep are active grazers and eat a variety of plants growing at ground or low level. In this way, they help in destroying weeds. तो sheeps क्या है? एक्टिव ग्रेजर हैं, बहुत ज्यादा खाती रहती हैं और ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स खाती हैं जो ग्राउंड लेवल और लो लेवल पर उगते हैं. इस तरह ये वीड्स को क्या कर देती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं. They are usually fed twice a day from troughs or are allowed to graze in a pasture. तो ये 2 दिन में 2 बारी खाती हैं. They eat pulses, corns, jowar, dry fodder and other grains. और ये क्या क्या खाती हैं? पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ड्राई फॉडर और अलग अलग तरह के ग्रेन्स. Sheep need fresh water from troughs or ponds. They are most comfortable when temperature is moderate, so fans may be needed for fresh air if sheep are kept in barns during hot weather. तो शीप्स को कैसा पानी चाहिए होता है? फ्रेश वाटर चाहिए होता है पॉन्ड से और ट्रफ से, और ये मोस्ट कंफर्टेबल तब होती हैं जब टेम्परेचर कैसा होता है? मॉडरेट होता है. और शीप्स को चाहिए फ्रेश एयर ताकि उनके बांस में हॉट वेदर का इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो. स्टेप्स टू ऑब्टेन वूल. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे वूल ऑब्टेन किया जाता है? शेयरिंग,
scoring, skirting fleece, shorting, removing burr, dyeing, and last is making yarn. The Bowen technique method of shearing was devised by Godfrey Bowen. जो बॉइन टेक्निक मेथड है शेयरिंग का वो डिवाइस बनाया गया था गॉडफ्रे बॉइन ने. शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग वूल, कि कैसे शेयरिंग होती है और वूल को प्रोसेस किया जाता है. द प्रोसेस बाय विच फ्लीस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग. ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्लीस को रिमूव किया जाता है वूल की बॉडी से, उसको शेयरिंग प्रोसेस कहते हैं. The person who removed sheep wool is called a shearer. और जो इंसान इस वूल की, इस शीप की वूल हटाता है उसको क्या कहते हैं? शेयरर. A large number of sheep are usually sheared together. The process of obtaining wool from sheep is as follows. जो large number of sheep है वो usually share होती हैं इकट्ठे, और जो प्रोसेस है इन वूल्स को obtain करने का वो follow है. Shearing. First, most flocks are used shorn twice a year. In March, April after the winter season and in September, October after rain. तो इनको साल में 2 बारी शेयर प्रोसेस किया जाता है. मार्च अप्रैल विंटर सीजन से पहले, विंटर सीजन के बाद में, और सितंबर और अक्टूबर आफ्टर रेनी सीजन. In some states like Jammu and Kashmir and Rajasthan, sheep are shorn thrice a year. जम्मू कश्मीर और राजस्थान के एरियाज में शीप को 3 बारी साल में शेयरिंग प्रोसेस की जाती है. The shearers begins by removing coarse wool on the sheep's back. Then it is separated from fleece during the process of shearing. जो शेयर है वो begins करता है रिमूव करना coarse wool उनकी बैक से, और उसके बाद सेपरेटेड फ्लीस कर देता है इस प्रोसेस में, शेयरिंग के प्रोसेस में. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑपरेशन, फ्लीस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मीन्स. डिपेंडिंग साइज के हिसाब से फ्लीस ऑब्टेन्ड होता है शीप से, इनसे. विथ क्लिपर्स और ए पेयर ऑफ सीजर इफ द नंबर ऑफ शीप इज लेस. क्लिपर से शेयरिंग प्रोसेस होता है जब शीप्स कम होती हैं. बाय पावर्ड ऑपरेटेड मशीन इफ द नंबर ऑफ शीप इज मोर. तो पावर ऑपरेटेड मशीन से होता है अगर शीप्स बहुत ज्यादा होती है. स्कोरिंग प्रोसेस. wool straight off a sheep containing a high level of grease which contain lanolin. Lanolin removed from wool is widely used in the cosmetic industry. जो lanolin है आपका वो कॉस्मेटिक की इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ग्रीस. और जो ये वूल हमें ऑब्टेन्ड होती है शीप से, उसमें हाई लेवल ऑफ ग्रीस होता है. एज सच इट कैन नॉट बी वर्कड इनटू yarn or knitted into water resistance mitten or sweater. The grease is generally removed by washing wool with detergent and alkine in tanks. This process of cleaning greasy wool is called scoring. अगर आप यहाँ पे देखिए greased wool है, इसमें डिटर्जेंट और अल्काई टैंक्स में डाला है उसको, और उसके बाद क्लीन वूल हो गई है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्कोरिंग प्रोसेस. स्कर्टिंग फ्लीस. After the process of scoring, the fleece is spread clean side down on the table top consisting of rotating steel pins spaced approximately 12 centimeter apart. This allows undesirable components like skin fragment, twigs, leaves, and feces to be removed from the fleece. If you see in this process, जो वूल है उसको एक टेबल टॉप पे ऐसे डाल दिया जाता है, रोटेटिंग स्टील्स के ये पिंस पे रोटेट करती है, जिसमें वो अलाउ हो जाता है कि उनका स्किन के फ्रैगमेंट, ट्विग्स, लीव्स और फीसेस आराम से रिमूव हो पाए. सॉर्टिंग. After cleaning, the fleece is sent to a factory where the hair of different texture is separated. तो सॉर्टिंग प्रोसेस मीन्स अलग अलग करना, जो डिफरेंट टेक्सचर्स होंगे उनको अलग अलग किया जाता है. रिमूविंग बर, जो गांठें पड़ जाती हैं उनको रिमूव करना. स्मॉली फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. द बर्स आर स्मॉल टू दोज दैट अपीयर ऑन सम स्वेटर. The fibers are then scoured again and dried. Only then
they are ready to be drawn into fiber. जो छोटे छोटे आपके बर्स हो जाते हैं स्वेटर्स पे आप देखते हैं, उनको रिमूव किया जाता है ताकि वूल बहुत अच्छे थ्रेड में बनाई जा सके. Combing and carding. The dried fiber are made to undergo combing and carding. These are two ways to prepare the raw fiber for spinning. तो ये दो वे हैं जिसमें रॉ फाइबर को स्पिनिंग के लिए तैयार किया जाता है. कार्डनिंग डिस्टेंगल्स द फाइबर. कार्डनिंग डिस्टेंगल करता है फाइबर्स को. कार्डनिंग कैन बी डन मैकेनिकली और बाय हैंड. कार्डनिंग को हम मैकेनिकली भी कर सकते हैं मशीन्स के थ्रू और हाथों के थ्रू भी. Combing is the process of brushing the fiber to make the yarn smooth. As we comb our hair, जैसे हम अपने बाल को कॉम्ब करते हैं, वैसे ही फाइबर को कॉम्ब किया जाता है ताकि वो एक अच्छे स्मूथ यार्न में बन पाए. It is usually done by use metallic brushes. और इसको किया जाता है metallic brushes की मदद से. Dyeing. Natural wool is of white, brown or black in color. It is dyed to get different colors. नेचुरल वूल हमारी ऑफ वाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है और इसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में. मेकिंग यार्न. क्लीन फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, combed and rolled into yarn. The long fibers are made into wool for sweaters while the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes. जो कॉम्ड और रोल करे जाते हैं यार्न को और जो लॉन्ग फाइबर्स हैं उनसे स्वेटर्स बनाए जाते हैं और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको स्पन और वूवन किया जाता है वुलन क्लोथ्स में. सिल्क. Silk is a strong, shiny, natural protein fiber secreted by silkworm larva. जो सिल्क है वो स्ट्रॉन्ग, शाइनी, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जिसको सिक्रीट किया जाता है सिल्क वॉर्म के लार्वा से. It is the only fiber which is obtained in the form of a continuous filament. As per Chinese record, the use of silkworm to obtain this animal fiber began as far back as 2700 BC. There are many types of different types and qualities of silk produced by different varieties of silkworm. तो ये वाला जो ऑब्टेनिंग प्रोसेस है चाइना के रिकॉर्ड में ये बताया गया है, जो सिल्क वॉर्म है उसको ऑब्टेन किया गया एनिमल फाइबर से और वो बिगिन कब हुआ था 2700 BC में. और डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस किए गए डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क वॉर्म से. टाइप्स ऑफ सिल्क. Different types of silk with different textures are obtained from different varieties of silk moth, like tussar silk, muga silk, mulberry silk, and kosa silk. तो अलग अलग तरह का सिल्क, अलग अलग टेक्सचर का सिल्क ऑब्टेन किया गया अलग अलग सिल्क मॉथ से या कुकून से, जैसे टसर सिल्क, मूगा सिल्क, मलबर सिल्क और कोसा सिल्क. मलबरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क. जो मलबरी सिल्क है वो सबसे मोस्ट कॉमनली सिल्क है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मलबरी सिल्क मॉथ. द क्वालिटी ऑफ मलबरी सिल्क इज वेरी गुड. और ये ऑब्टेन किससे होता है? मलबरी सिल्क मॉथ से, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. अब लाइफ साइकिल सिल्क मॉथ का कैसा है? Life cycle of silk moth. The life cycle of silk moth consists of the following stages. Egg. A female silk moth lay a number of eggs on mulberry leaves. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एग्स ले करती है मलबरी लीव्स पर. Caterpillar. The eggs hatched into tiny larvae called caterpillars or silkworms. फिर जब अंडे फूटते हैं तो वो टाइनी लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको कैटरपिलर्स या सिल्कवॉर्म कहते हैं. कैटरपिलर्स आर वैक्यूरस ईटर. जो कैटरपिलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं. दे ईट मलबरी लीव्स वेरी क्विकली एंड ग्रो इन साइज. वो बहुत जल्दी जल्दी मलबरी लीव्स को खाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं. When a caterpillar is fully grown, it stops eating. It first weaves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of figure 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes a substance made of protein from its salivary glands. This proteinous substance hardens on coming in contact with air and becomes silk fiber.
Soon the caterpillars completely cover itself in silk fiber. This covering is known as cocoon. Silk fiber is obtained from this cocoon. तो क्या होता है, जब कैटरपिलर पूरा बड़ा हो जाता है तो वो खाना खाना बंद कर देता है. सबसे पहले वो एक नेट की तरह वेव बनाता है ताकि वो अपने आप को होल्ड कर पाए. उसके बाद वो साइड टू साइड फॉर्म करता है फिगर 8. तो कौन सी शेप में वो फॉर्म करता है? 8 शेप में. और इस मूवमेंट में कैटरपिलर सीक्रीट्स करता है एक सब्सटेंस प्रोटीन का अपने स्लाइवरी ग्लैंड से. और ये जो सब्सटेंस है जब वो बाहर आता है तो एयर के कांटेक्ट में आते ही वो सख्त हो जाता है और ये बन जाता है सिल्क फाइबर. कैटरपिलर अपने आप को कंप्लीटली कवर कर देता है सिल्क फाइबर में और इस कवरिंग को हम कहते हैं कोकून. सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है कोकून से. प्यूपा. Inside the cocoon, the caterpillar changes into a pupa that slowly changes into an adult moth. तो क्या होता है कि जो कैटरपिलर है वो चेंज हो जाता है प्यूपा में और ये स्लोली चेंज हो जाता है फिर एडल्ट मॉथ में. एडल्ट. When fully grown, the adult moth cuts the cocoon and come out. जब मॉथ बड़ा हो जाता है तो ये कोकून को कट करता है और बाहर आ जाता है. सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग. कैसे सिल्क वॉर्म की ब्रीडिंग होती है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर. जो सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शंस होते हैं रॉ सिल्क के लिए उसको कहते हैं सेरीकल्चर. It involves a number of steps and processes. As we know, a female silk moth lay hundreds of eggs. To ensure more egg hatching, they are washed and incubating at a suitable temperature of 25 degree and 80% humidity. तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फीमेल सिल्क मॉथ है जो हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है और इंश्योर करने के लिए कि वो और एग्स जो है हैच हो उनको वॉश किया जाता है और इंक्यूबेट किया जाता है सुटेबल टेम्परेचर में 25 डिग्री के और 80% ह्यूमिडिटी के. After the eggs are hatched, caterpillars are fed freshly cut mulberry leaves. After eating vigorously for 20 to 35 days, the caterpillars are ready to spin cocoons. जब अंडे फूट जाते हैं तो उसमें से कैटरपिलर्स निकलते हैं और उनको फ्रेश मलबरी लीव्स दी जाती है खाने के लिए. जब 20 से 35 दिन तक वो खाते रहते हैं तो कैटरपिलर्स कोकून्स रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं. A proteinous substance is secreted by two salivary glands in the caterpillar's head. कैटरपिलर्स के हेड में salivary glands होते हैं और वहां से secreted juices निकलते हैं प्रोटीन का. This substance solidifies when it comes in contact with air and forms silk filament. और ये जैसे ही salivary gland से बाहर निकलता है कोकून बनाने के लिए, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है. The silkworm spins approximately 1.5 kilometer of filament and completely enclose itself in a cocoon. जो silkworm है वो 1.5 किलोमीटर ऑफ फिलामेंट बनाता है और अपने आप को टोटली कोकून में छुपा देता है. Under ideal condition, the silkworm complete making a cocoon in about a week. अब एक ही हफ्ते में कोकून बन जाता है. There may be variation in the number of days due to fluctuation in temperature and humidity. Number of days आगे पीछे हो सकते हैं तब जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में फ्लक्चुएशंस होते हैं. Once the caterpillars are inside the cocoon, they change into pupa. The pupa passes through different stages and changes into moth. However, in sericulture, pupas are stifled, killed with heat before they can do so. This is because the moth secretes a fluid to dissolve silk so that it can merge from cocoon. Therefore, the cocoons are boiled or kept in the oven to kill the pupa inside. तो क्या होता है जब प्यूपा कैटरपिलर्स कोकून में प्यूपा बन रहा होता है तो प्यूपा बहुत सारी स्टेजेस से पास होता है और वो मॉथ में चेंज होता है. और सेरिकल्चर के प्रोसेस में प्यूपा को मार दिया जाता है गर्मी से या ओवन से.
हीट करा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुकून से बाहर आ जाएंगे तो जो सिल्क थ्रेड की क्वालिटी है या स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी या कम हो जाएगी। The silk is then obtained from undamaged cocoon by unraveling the cocoons. उसके बाद सिल्क थ्रेड्स को अनडैमेज्ड कुकून से ले लिया जाता है। However, some pupa moth are allowed to live to be used for breeding. कुछ को जिंदा रखा जाता है ताकि उनकी ब्रीडिंग हो पाए। The heating damage the cocoon and cell become of lower quality. हीटिंग जो होता है डैमेज कर देता है कुकून्स को और जो सिल्क है वो क्या हो जाता है? लोअर क्वालिटी का हो जाता है। The process of drawing silk fiber by unweaving cocoon and converting it into silk yarn are called reeling. जो प्रोसेस होता है अनवाइंड कुकून को और कन्वर्ट करना सिल्क थ्रेड को, उसको कहते हैं प्रोसेस रीलिंग का। रीलिंग इज ए टू प्रोसेस स्टेप। First, the cocoon are processed in the hot water 95 to 97 degrees Celsius for 10 to 15 minutes. Heating, boiling softens the protein in the cocoon and allow easy unwinding of silk fiber. तो सबसे पहला क्या होता है रीलिंग के प्रोसेस में? कुकून को हॉट वाटर में प्रोसेस किया जाता है 95 से 97 डिग्री सेल्सियस 10 से 15 मिनट, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है कुकून का वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद उसको अनवाइंड कर देते हैं सिल्क फाइबर में। सेकेंड स्टेप, cocoon are reeled into silk yarn in hot water with different types of machine. जो cocoon है उसको रील किया जाता है सिल्क यार्न में हॉट वाटर में अलग अलग टाइप्स ऑफ मशीन की हेल्प से। Depending upon the required thickness of silk thread, filaments from a number of cocoons are combined together and reeled. डिपेंडिंग करता है कि उसकी थिकनेस कैसी है थ्रेड की और कितने कुकून्स हैं और कैसे उसको रील किया जाए। द थ्रेड इज वून अराउंड ए रील एंड इज नोन एज रॉ सिल्क। थ्रेड को ऐसे एक रील पर वून किया जाता है और इसको कहते हैं रॉ सिल्क। दिस इज यूज्ड टू मेक सिल्क क्लॉथ और यही थ्रेड यूज किया जाता है सिल्क क्लॉथ्स को बनाने में। फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ सिल्क, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सिल्क की क्वालिटी को। रेयरिंग स्पेस, लार्वा ग्रोथ इन very fast during the early stages and therefore requires ample space. Too much crowd in the rearing tray result in increase in humidity, heat and fermentation of litter. This leads to unhygienic condition, wastage of leaves and underdevelopment of silkworm. तो अगर लार्वा बहुत जल्दी ग्रो करता है अपनी स्टेजेस में, बहुत जल्दी आगे बढ़ता है और उसको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होती है और अगर उस ट्रे में बहुत ज्यादा लार्वाज होंगे तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा लीव्स की लिट्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडीशन कैसी हो जाएगी? अनहाइजीनिक हो जाएगी, बहुत सारी पत्तियां खराब हो जाएंगी और जो सिल्क वॉर्म है वो पूरे डेवलप नहीं हो पाएंगे। लीफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि लीफ की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है। Leaf quality play an important role in the production of quality cocoon. Young worms are fed top, tender, succulent leaves which contain sugar, less fiber and starch, but have high moisture and protein. The old worms are fed mature leaves available at the bottom of the mulberry trees. जो यंग worms होते हैं, जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनको टेंडर, सॉफ्ट और सक्यूलेंट लीव्स को दिया जाता है क्योंकि वो क्या कंटेन करते हैं? शुगर कंटेन करते हैं, उनमें फाइबर और स्टार्च कम होता है और मॉइस्चर और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। और जो पुराने वॉर्म्स हैं उनको मैच्योर लीव दी जाती है मलबरी ट्रीज की। The leaves fed to the worm are kept free from dust particles or water droplets. जो leaves worms को दी जाती है उनको dust free particles रखे जाते हैं और उनको वाटर ड्रॉपलेट से भी दूर रखा जाता है। वाटर यूज्ड इन रीलिंग, कौन सा पानी यूज्ड होता है रीलिंग के प्रोसेस में? इफ क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड फॉर बॉइलिंग कोकून इज पुअर, द इम्प्योरिटी सस्पेंडेड इन द वाटर विल adhere to the silk, thereby influencing its color and luster. Hence, the water used should be colorless, odorless,
and transparent. अगर हम पानी गंदा होगा, हमारा impurities होंगी पानी में, तो जो सिल्क थ्रेड बनेगा वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, उसका कलर और लस्टर्स अच्छा नहीं होगा और वो उस पे अफेक्ट होगा. इसलिए पानी कैसा होना चाहिए? कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. टेक्निक्स ऑफ स्टिफलिंग. Cocoons of different sizes and different quality needed different degree of temperature for stiffling. Stiffling by sun drying damages the quality of silk due to the action of ultraviolet rays. Therefore, stiffling by hot air conditions is better technique. तो जो कलर जो कुकून्स होते हैं डिफरेंट साइज के और डिफरेंट क्वालिटीज के, उनको डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है स्टिफलिंग के लिए. स्टिफलिंग अगर हम सन ड्राई से करेंगे तो डैमेज हो जाएगा सिल्क हमारा. क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज उसको डैमेज कर देगी. इसलिए स्टिफलिंग की जाती है हॉट एयर कंडीशन बेटर टेक्निक से. इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स. कैसे इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स है? Shorter diseases, anthrax. People working in wool industries can get infected by a bacterium called Bacillus anthracis, which causes a fatal blood disease called shorter disease. जो लोग वुलन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरियम से, बैसिलस एंथ्रेसिस से, जो फैटल ब्लड डिजीज है, शॉर्टर, जिसको कहते हैं शॉर्टर डिजीज. रेस्पिरेटरी डिजीज. Workers inhale vapors produced when cocoons are steamed, cooked or reeled. जब workers inhale करते हैं वो हवा जो cocoons को steam, cooked और reel करते हुए काम आती है. This can lead to breathing problem, asthma and bronchial elements. तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है. Scabies and other skin infection. स्कैबिज और बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं. When boiling cocoon in water, workers remains in constant contact with boiling water. Due to this, their skin becomes raw and blistered. This results in peeling of the hands, skins of hands and feet. The chances of skin infections like scabies. जब बॉयल हो रहे होते हैं कुकून तो वर्कर्स को कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग वाटर में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन कैसी हो जाती है? कच्ची हो जाती है और उनकी स्किन पे ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं. और इसी कारण उनकी स्किन क्या होती है? स्किन हटने लग जाती है हाथ से और फीट से, और इसी की वजह से उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्कैबिस. If you like the way as I'm teaching, so like and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. Thank you so much.